Hello students, we shall start another story of the supplementary book जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। द कॉप एंड द एंथम। कॉप का मतलब होता है क्या कि पुलिस वाला, और एंथम का मतलब होता है जो नेशनल सॉन्ग होता है उसको एंथम बोलते हैं। जैसे कि हमारे देश का एंथम क्या है, जन गण मन। ये दो चीज़ों को लेकर चैप्टर का नाम लिया गया है। सो बिफोर यू रीड, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? So, have you ever found yourself? कभी आप खुद को ऐसे सिचुएशन में देखा है क्या कि इन दैट सिचुएशन व्हाट यू एक्सपेक्ट हैज़ नॉट हैपेंड। जो आप सोच रहे होते हो वो नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि उसका ऑपोजिट होता है। जो आप आस लगाए बैठे हो कि ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं होता, लेकिन उसका ऑपोजिट हो जाता है। इफ़ सो यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। सो अगर ऐसा सिचुएशंस आपके लाइफ में भी आया है तो उसको कहेंगे ये आयरनी ऑफ द सिचुएशन। आयरनी मतलब जो हम सोचते हैं उसका उल्टा होना। विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग, जो कि हमेशा हमें हमारे लिए एम्बेरसिंग सिचुएशन लाता है। एम्बेरसिंग मतलब सेमफुल। हम खुद को बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, खुद को बहुत शर्मनाक सिचुएशन में खुद को पाते हैं। The story that you are going to read has a number of such situations. So, the story, The Cup and the Anthem, has so many such situations that we are going to read. Soapy is a homeless and jobless man. Winter is fast approaching, and Soapy must have a place to stay. So, in this unit, we shall see that winter season is coming, approaching matlab coming near, and Soapy must find a place to give himself a shelter. Soapy must find a place to stay, to uh, stay safely in the winter season. Soapy comes to a decision at last. So what decision he takes we shall see in this unit. Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. Madison Square is the name of a place. There, Soapy was sitting on a seat. There are certain signs to show that winter is coming. So we shall see that some of the signs are being given in this unit to show that the winter season is coming. यहाँ पर देखेंगे कि winter season आने के कुछ signs हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि birds begin to fly south, people want new warm coats, and Soapy moves restlessly on his seat in the park. पीपल वेर बाइंग न्यू वार्म कोट्स, अपने खुद को गर्म रखने के लिए कोट्स खरीद रहे हैं। बर्ड्स वर फ्लाइंग टू द साउथ। व्हेन यू सी दिस साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर, एंड दीज आर द साइंस दैट विंटर इज़ कमिंग नियर। ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट, उसके पैरों पर एक सूखा पत्ता गिरता है। दैट वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. To prepare for what? It was a time for the people of the Madison Square to prepare for the winter season, to prepare themselves, to keep themselves warm for the winter season. खुद को गर्म रखने के लिए वो प्रिपरेशन में लगे थे. सोपी's mind now realized that fact. सोपी के माइंड में वो खुद रियलाइज़ कर चुका था उस बात को. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather. He need to take care of him. उसको अपना ख्याल रखना होगा winter season में. And therefore he moved restlessly on his seat. So he was very much worried about what to do in the winter season, how to get a shelter. Soapy's hopes for the winter were not very high. So उसके बहुत high hopes नहीं थे. He was not thinking of sailing away on a ship. वो ship पर घूमने जाने के लिए भी नहीं सोचा था. He was not thinking of southern skies और ऑफ बे ऑफ नेपल्स. ये प्लेसेस हैं साउदर्न स्काइज, बे ऑफ नेपल्स, जो कि वार्म प्लेसेस होते हैं. लोग वहाँ पर वार्म प्लेसेस में जाते हैं विंटर सीजन स्पेंड करने के लिए. 3 months in the prison of Blackwell's Island was what he wanted. He wanted 3 months to spend in the Blackwell prison. ब्लैकवेल आइलैंड में एक प्रिजन है, जेल है, जहाँ पर वो 3 मंथ बिता देना चाहता था. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north and cold north wind and safe from cops. So what did he will get there?
उसको क्या मिलेगा ब्लैकवेल आइलैंड के प्रिजन में? ही विल गेट फूड एवरी डे, ही विल गेट ए बेड टू स्लीप एवरी नाइट, एंड ही विल गेट सेफ्टी फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ एंड सेफ फ्रॉम द कॉप्स। पुलिस वालों से भी वो सेफ रहेगा, हवा से सेफ रहेगा, और हर दिन उसको खाना मिल जाएगा। दिस इज़ व्हाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। उसको उस वक्त इन सारी चीज़ों की ही ज़रूरत थी। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। फॉर ईयर्स, पर बहुत सालों तक वो ब्लैकवेल आइलैंड में ही अपना विंटर सीजन स्पेंड करता था, वह ब्लैकवेल आइलैंड के प्रिजन में। Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Richer New Yorkers मतलब जो न्यूयॉर्क में रहते हैं जो लोग। रिचर मतलब जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो फ्लोरिडा या फिर मेडिटेरेनियन सीज को घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं विंटर सीजन में। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी ने प्लान बनाया क्या कि वो आइलैंड जाएगा। And now the time had come. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. So वो अपने सीट में 3 न्यूज़पेपर्स लेके बैठा हुआ है खुद को वार्म करने के लिए, लेकिन वो न्यूज़पेपर्स भी कोई काम नहीं आ रहे हैं, उसको गर्म रखने में कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। So Sophie was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. सिटी में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर वो जा सकता है खाना खाने के लिए, बेड के लिए। दिस वुड बी गिवन टू हिम, उसको मिल भी जाएगा। ही कुड मूव फ्रॉम वॉल बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर। वहाँ पर उसको केयर करने के लिए जगह भी मिल जाएगा, इस जगह से उस जगह वो घूम भी सकता है, लेकिन ब्लैकवेल आइलैंड वो सबसे ज़्यादा पसंद करता था। Soapy's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. So ये सारे जो जगह हैं, दूसरी जगह हैं ब्लैकवेल आइलैंड को छोड़ के, he will have to do something, वहाँ पर उसको कुछ काम करना पड़ेगा। In one way or other, he would have to pay for what they gave him. किसी न किसी तरह से इन वन वे और अदर उसको वहाँ पर पे भी करना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे उसको खाने के लिए, बेड के लिए। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। तो उसको पैसे तो नहीं मांगेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे, उसके होल बॉडी को वॉश करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके लाइफ के बारे में पूछेंगे। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन डेड। सो उसने क्या सोचा, जो ब्लैकवेल आइलैंड का जो प्रिजन था, प्रिजन मतलब जो जेल होता है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, उसके लिए वो बेटर प्लेस था। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। सो सोपी वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ ए जेंटलमैन, वो खुद को एक जेंटलमैन समझ रहा है, और उसके प्रिजन में कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से उसको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन उसके जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर कोई भी नहीं होगा क्वेश्चन करने के लिए। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगिन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिज़ायर। सो उसका जो डिज़ायर था कि वो ब्लैकवेल आइलैंड में टाइम स्पेंड करेगा, उसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि अपने इच्छा को पूरी करने के लिए उसके लिए वो खुद काम करने लगा। Okay students, unit 1 ends here. We shall see unit 2 in the next video.